नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजा रघुवंशी की हत्या एक रहस्य जो चेरापूंजी की वादियों में गूंजता रहा है, एक साजिश जो रिश्तों की चुप्पी में छिपी हुई है, और एक नाम सोनम जो अब सवालों के कटघरे में खड़ा है। मेघालय पुलिस ने मौका वारदात पर जब रिक्रिएशन किया तो राजा की कत्ल के सारे राज खुल गए। इससे पहले तक जो साजिश के धुंध में खोए थे, क्या यह महज एक रिश्ता था या कोई बदला? पुलिस ने अब हर परत खोल दी है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। राजा हत्याकांड मामले में मौका वारदात पर रिक्रिएशन सीन होने के बाद पूरी साजिश से पर्दा उठ गया है। इसके साथ ही उन सवालों के भी जवाब मिल गए हैं जिनकी तलाश में मेघालय पुलिस कई राज्यों की खाक छान चुकी है। पुलिस की तफ्तीश में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं जिन्होंने सोनम की ओर इशारा किया। इतना सब होने के बाद भी पुलिस को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर सोनम ने राज के साथ मिलकर कैसे राजा को मौत के घाट उतारा, क्यों मारा? आखिर सोनम राजा के खून की प्यासी कैसे हो गई, और राजा की हत्या के लिए सोनम ने चेरापूंजी की सोहरा को ही क्यों चुना? ऐसे और भी कई सवाल थे जो मेघालय पुलिस को परेशान कर रहे थे, लेकिन रिक्रिएशन के बाद सभी सवालों के जवाब भी मिल गए हैं और राजा की हत्या में किसकी कितनी भूमिका थी, इससे भी पर्दा उठ गया है। We just had to actually replay or recast how they had done it, and we started off from the Maulakhyat parking lot where they had kept the scooties. Then we had moved on to a place about 3 to 4 kilometers from Waisadong parking lot, whereby they had stopped to take photographs, and there was an attempt in that place, but it was not feasible because Raja started off his bike, and so they had to move on. And they had stopped about 200 meters away from the Waisadong parking lot. There only photographs were taken, but attempt was not made in that point. We finally came to the Waisadong parking lot where the scooties were kept. We ascertained where the scooties were kept and the position of the scooties vis-a-vis the parking lot, and where they had actually made an ingress into the viewpoint. After that, we had gone to the viewpoint. We had ascertained where Raja was standing. We had taken to replay the whole thing, we had taken one of our personnel from the fire and emergency services as Raja to replay the role of Raja. हालांकि सोनम रघुवंशी ने पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन बॉयफ्रेंड राज और सोनम के ब्लेम गेम ने मेघालय पुलिस को सवालों में फंसा दिया, जिससे पुलिस के कुछ सवाल बिना जवाब के ही रह गए। हालांकि जब मेघालय पुलिस ने सभी आरोपियों के साथ शिलोंग की ओर उड़ान भरी तो उन्हें अंदाजा था कि आरोपियों से पूछताछ में सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोनम ने राज के साथ मिलकर अपने अगले प्लान को एग्जीक्यूट किया, जिससे सुलझी दिखाई दे रही गुत्थी फिर से उलझने लगी। ऐसे में मेघालय पुलिस ने भी अपना नेक्स्ट प्लान शुरू कर दिया। मेघालय पुलिस ने सभी आरोपियों को मौके पर ले जाकर सीन रिक्रिएट किया। She has already admitted to the offence and all that, and we have played out the reconstruction today, whereby where she was standing, what was her role out there. So everything has been played out today. This is pre-planned, and Raja has been hit by all three. Thrown the body, sir. All three have thrown the body. मेघालय पुलिस के इस खुलासे के बाद राजा के हत्याकांड से करीब 80% पर्दा उठ गया है। इससे पुलिस को इतना पता चला कि मासूम सी दिखने वाली सोनम ने कैसे राजा की हत्या की प्लानिंग की और किस किस ने राजा पर जानलेवा वार किए।
just before the murder, who was standing where, and how the blow took place. So 3 blows took place. The first blow was by Vishal. That there's one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. They have replayed of how they have thrown the 2 daos. The first dao which was thrown has been recovered, and you have seen that, I think, in certain visuals. It has an orange handle. The second machete which is not recovered, and from which they have shown as to where is the point of it being thrown, it's got a steel handle. The SDRF are on the job. They've gone down and they've taken handheld metal detectors to try to recover the weapon. We have also ascertained Akash, the white shirt we had recovered with the body on the 2nd of June. That was thrown by Akash. that was his shirt. He has shown us from where he has thrown that. We have also ascertained as to what happened to the mobile of Raja, which was first damaged by Sonam, by Vishal. So this whole thing has been played out, and how they made their exit from this place. रिक्रिएशन के बाद मेघालय पुलिस को अपनी जांच को दिशा देने में मदद मिली है। पुलिस ने उन हथियारों को बरामद करने की कोशिश तेज कर दी जिनका जिक्र आरोपियों ने रिक्रिएशन के दौरान किया। Reconstruction of the murder, the offence has been played out today. We have got a very clear picture. We have recorded in videography. We've got independent witnesses to cover it. And I think the reconstruction was very, very successful. शिलोंग एसपी विवेक सायम की माने तो रिक्रिएशन से कुछ हद तक पिक्चर साफ हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह इसका खुलासा होने में थोड़ा वक्त और लगेगा। दरअसल रिक्रिएशन के बाद पुलिस के हाथ अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं लग पाया है जिसका जवाब वो पहले दिन से तलाश रही है। Postmortem report, there were 2 wounds on the head. So the third one which Anand has said, when he had taken his shot, he was very nervous, and I think it didn't make much of an impact. Also, if there is an impact, also the kind of decomposition which the body has had, the postmortem examination wasn't able to ascertain that gash out there. But the 2 head injuries from sharp weapons are very clear. पुलिस के हाथ अभी तक सिर्फ एक वेपन लगा है जिससे आरोपियों ने राजा की हत्या की थी। एक और वेपन से राजा के सिर पर वार किया गया था, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। एनडीआरएफ की टीमें उसे तलाशने के लिए फिर से घाटी में उतरी हैं। राजा की हत्या का समय। राजा की हत्या में सोनम की क्या भूमिका थी? किसने राजा पर जानलेवा वार किया? किसने राजा पर पहले हमला किया? जब राजा पर हमला किया उस समय सोनम कहां थी? कौन सा आरोपी राजा की किस ओर खड़ा था? राजा की हत्या में कितने हथियारों का इस्तेमाल हुआ? किस हथियार से किसने राजा पर वार किया? सोनम ने राजा की हत्या के लिए इसी जगह को क्यों चुना? मेघालय पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि आरोपियों से पूछताछ तब तक जारी रहेगी जब तक सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। ऐसे में राजा का मोबाइल फोन अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। हालांकि इतना जरूर पता चल गया है कि राजा के फोन को सोनम ने पहले तोड़ा और उसके बाद विशाल ने राजा के फोन को तोड़कर फेंक दिया था। इससे एक राज से और पर्दा उठ गया, वो ये कि राजा की हत्या होने और घाटी में फेंके जाने तक सोनम वहीं मौजूद थी। उसी के सामने तीनों सुपारी किलर्स ने राजा के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए और खाई में फेंक दिया।
कुछ दिन पहले जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे थे, उनमें सोनम सुपारी किलर्स के साथ स्कूटी पर जाते हुए दिखाई दे रही थी। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज और रिक्रिएशन से मिली जानकारी आपस में मेल खाती है। लेकिन मेघालय पुलिस की तफ्तीश यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि सही मायने में यहां से शुरू होती है। पुलिस ने राजा हत्याकांड में बाकी एंगल से भी जांच करनी शुरू कर दी है। ऐसे में पकड़े गए 5 आरोपियों के सिवाय और किस किस की राजा की हत्या के पीछे साजिश है, वो भी पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास अगर कोई है तो वो मोहब्बत है, जिसके इर्द गिर्द संसार के सभी रिश्ते बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं और कुछ नए रिश्तों की नींव भी रखी जाती है। एक ऐसा ही रिश्ता राजा रघुवंशी के परिवार ने भी बनाया था, अपने बेटे का रिश्ता सोनम के साथ जोड़कर। लेकिन प्रेम कहानी में ट्विस्ट आना अभी भी बाकी था। इसके लिए सोनम ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और फिर ऐसी जगह चुनी जहां वो बिना किसी खौफ के अपनी मांग का सिंदूर मिटा सके। इस मकसद में सोनम पूरी तरह कामयाब भी हुई, लेकिन सोनम मांग का सिंदूर मिटाते हुए ये भूल गई कि जिस सिंदूर को उसने 7 वचन लेकर मांग में डलवाया है, उसकी ताकत के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। ये रिपोर्ट देखिए। सोनम ने पूछताछ में सच उगला। राजा की हत्या का राज बताया। सोनम राज ने माइंड गेम खेला। हत्या के मकसद पर आकर अटका। सोनम समेत 5 आरोपियों की कस्टडी मिलने के बाद मेघालय पुलिस की तफ्तीश अब पूछताछ तक पहुंच गई है। जिन सबूतों को जुटाकर मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आरोपियों को दबोचा था, उन सभी सुरागों को आरोपियों के सामने रखकर मेघालय पुलिस आरोपियों से सच उगलवा रही है। इन अ सेंस कि वो लोग ने ये बताया कि ये कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, इतना तक वो लोग ने कबूल किया। सूत्रों की माने तो सोनम ने मेघालय पुलिस की पूछताछ में वही बयान दिया जो बयान उसने गाजीपुर में दिया था। लेकिन जब पुलिस ने सबूतों को सामने रखकर फिर से वही सवाल दोहराया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन असली सच बाहर आना अब भी बाकी था। वो ये कि राजा को मारने की प्लानिंग किसने की। मेघालय पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए कई सवाल तैयार किए। राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग किसने की? राजा की हत्या के लिए शिलोंग को क्यों चुना? होम स्टे में अपने सामान के साथ मंगलसूत्र और अंगूठी क्यों छोड़ी? क्या आपने जानबूझकर पति की हत्या की साजिश रची? हत्या की योजना कब और कहां बनाई थी? क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था? अगर हां तो कौन कौन? क्या अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी? सुपारी किलर से आपकी मुलाकात कब, कैसे और कहां हुई थी? तुम्हारे और राज कुशवाहा के बीच किस तरह की बातचीत होती थी? क्या हत्या से पहले रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स या चैट डिलीट किए गए हैं? सुपारी किलर्स को कितनी रकम दी गई थी? सुपारी किलर्स को देने के लिए पैसे कहां से आए? राजा रघुवंशी को खासी घाटी में कैसे और क्यों बुलाया गया? हत्या के समय तुम कहां थी? तुमने तलाक क्यों नहीं लिया? राजा की हत्या करने का रास्ता क्यों चुना? राज कुशवाहा की भूमिका क्या थी? क्या वो घटना के समय मौजूद थी? मेघालय पुलिस ने इन सवालों के जरिए सोनम रघुवंशी से पूरा सच जानने की कोशिश की, लेकिन सोनम ने कई जगह पुलिस को गुमराह किया
तो कई जगह सबूतों के चलते सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सूत्रों की माने मेघालय पुलिस पहले सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करेगी, उसके बाद सोनम और राज का आमना सामना कराकर पूछताछ करेगी। मेघालय पुलिस का मानना है कि ऐसा करने से सच छिपाने की गुंजाइश ना के बराबर बचेगी। अभी वो तो जारी है, ये अभी पूछताछ अभी तो अकेला पूछताछ जारी है। उसके बाद वो लोग का आमना सामना कराए जाएंगे और उसके बाद ही ये जो वो लोग का जो बात वो लोग ने जो बताया है उसको हम लोग कंफर्म करेंगे। हम लोग ने ये एस्टेब्लिश किया है कि राज और सोनम के पास साथ कुछ इलिसिट रिलेशनशिप हम लोग ने एस्टेब्लिश किया है, लेकिन इसका कौन मास्टरमाइंड है, क्यों किया है वगैरह अभी उसको एस्टेब्लिश करना बाकी है। अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान अगर कुछ ऐसा बात आते हैं जिसको हम लोग को जरूरत पड़ेगी उसको इंदौर लेके जाने के लिए, तो हम लोग वो लोग सबको इंदौर या कहीं और जगह भी हम लोग लेके जाएंगे। उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया गया था, तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट में वो नेगेटिव निकला है। हम लोग तब तक उसको पूछेंगे, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि वो लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। और हम लोग एक बंदा कोई और बता रहा है, दूसरे और कुछ और बता रहे हैं, जब तक वो लोग का स्टेटमेंट मैच नहीं करेंगे तब तक पूछताछ होगा। राजा हत्याकांड मामले में जानकारी देते हुए डीआईजी डेविस मार्क ने खुलासा किया कि सोनम प्रेग्नेंट नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही थी कि सोनम प्रेग्नेंट है। ऐसे में जब उससे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सोनम प्रेग्नेंट नहीं है। जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया गया था, तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट में वो नेगेटिव निकला है। सूत्रों की माने तो मेघालय पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन में सोनम के मंगलसूत्र और अंगूठी ने अहम रोल अदा किया। जिस वक्त मेघालय पुलिस को होटल में रखे सामान से मंगलसूत्र बरामद हुआ था, पुलिस को उस समय अंदाजा लग गया था कि सोनम जिंदा है। इससे पुलिस वालों में उम्मीद जग गई थी कि सोनम के मिलने से राजा हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। इसीलिए मेघालय पुलिस ने सोनम की तलाश तेज कर दी। उस समय मेघालय पुलिस को अंदाजा नहीं था कि राजा की हत्या में सोनम का हाथ निकलेगा। इनिशियली जब हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हम लोग को ये पता नहीं था कि ये मर्डर केस था या कुछ मिसिंग केस है या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो उस टाइम जब हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो एक होम स्टे में और उसका सूटकेस मिला था, और उस सूटकेस में उन लोग का कपड़े वगैरह थे, और कपड़े के साथ उसका एक मंगलसूत्र और एक रिंग मिला था, जहां से हम लोग को शक होने लगा कि शायद वो जिंदा है। और नहीं तो कोई टूरिस्ट अपना मंगलसूत्र उधर में छोड़ के घूमने नहीं जाएंगे। ये हम लोग को अभी तक जितना पूछताछ में आया है, अभी हम लोग को पता चला है कि वो लोग शायद अराउंड द सेम टाइम, मतलब जब ये सोनम और राजा आए थे करीब वही सेम टाइम वो ही आए थे उधर में शिलांग और सोनम। डीआईजी डेविस ने एक बात पर पक्की मोहर लगा दी कि पूछताछ के दौरान सोनम और राजा ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सोनम राज को मास्टरमाइंड बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी सोनम को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बताकर खुद को बचाने की फिराक में है। ऐसे में दोनों के इस ब्लेम गेम ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक दूसरा को ब्लेम कर रहा है। अभी जब तक वो, जैसा अभी सोनम बोल रहा है कि राज मास्टरमाइंड है, राज बोल रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड ही बता पाएगा कि वो मर्डर मोटिव क्या है। इसको हम लोग को एस्टैब्लिश करना है कि मास्टरमाइंड कौन है। मर्डर वेपन वो जो दाव मिला था वही मर्डर वेपन है। तो वो दाव बहुत से लाया था? हाँ, हम लोग को पता चला है कि वो होटल के पास से ये दाव वेपन, ये दाव जो है वो वहां से खरीदा। गुवाहाटी में एक होटल है। डीआईजी डेविस मार्क ने कहा कि जब तक मेघालय पुलिस राजा हत्याकांड की सभी परतें नहीं खोल देती तब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। हालांकि मेघालय पुलिस के पास आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए काफी सबूत हैं, लेकिन वो चाहती है कि इस केस की बाकी गुत्थियों को भी सुलझा लिया जाएगा, जिससे किसी सवाल का जवाब बाकी ना रहे। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि सोनम पर राजा की हत्या करने का आरोप सही साबित हुआ। ऐसे में पुलिस के लिए पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि मास्टरमाइंड कौन है, किसने राजा को शिलांग ले जाकर मारने की प्लानिंग की और हत्या करने के पीछे उसका मकसद क्या था। राजा हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मेघालय पुलिस ने सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है।
इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर मौकाए वारदात पर सीन रिक्रिएशन की भी तैयारी की है। इसके लिए भी मेघालय पुलिस ने प्लान बनाया है। उसके मुताबिक मेघालय पुलिस आगे बढ़ेगी और सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। इस खास बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।